लेसन नहीं गया, कोई बात नहीं। संडे को तो मैं जाता है, संडे को तो भेजते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। बच्चे को पंडित आई थी साल बनाना, बच्चे को पंडित बनना तो बड़ा काम देखते हैं। क्या डाला क्या नहीं आएगी वो, नहीं आएगी वो, हमेशा बोलेंगे टॉयलेट क्लियर करने वाले नहीं आएगी। प्रैक्टिकल तुम जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनोगे तब तक ऐसे ही रहेंगे, वो तुम्हें करने ही देते रहेंगे। Good morning, students. Can you hear my voice? कौन लेना चाहिए फर्स्ट क्या है, किसी को कुछ हो गया कौन जवाबदारी लेगा बताओ। Sorry, students. My internet was not stable, so I was unable to send you the link. 5 मिनट उसकी वजह से लेट हो गया. You can say strength to overcome this problem. That is why Jha Pallavi won't be able to attend the lecture for 1 week. So monitor कौन है 11th B के? Present है अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा झा पल्लवी है ना आपकी क्लास में? She won't be able to attend the lecture because her grandmother expired, and that she called me yesterday about that. So I feel very sorry about the family. It was because of old age. It was not because of other problems. She had heart attack. So I feel we should. If at all you have her number, आप उसको कॉल करिएगा, उसको consolation message भेजिएगा. Okay, it is the need of the day. Though we are not connected with each other personally, but virtually आप लोग एक दूसरे को support कर सकते हैं. So try to get the number. Monitor के पास होगा number. Take the number और उसको message कीजिएगा कि भाई आप for her consolation message भेजिएगा. She would feel better. She and her family, they need it. It is a need of the day. Fine. Other than that, I hope everyone is fine, fit and fine. सब लोग सही है, सब लोग fit है. Can you open the camera for a minute or two so that I can see all of you? All of you are fit and fine. Nice to see Bhumi, Diya, Desai Ritu, Diya, Akshat. Good to see you all. अच्छा लगा. चिंतन, महक, रावत, रितिका, रावत, दिव्यानी, सब अपना कैमरा ऑन करिए बेटा. जानवी, खुशी, फाल्गुनी, हर्ष. Other than that, I just need to inform कि आपकी 28th और 29th को of this month you will have your examination. आप लोगों की एग्जाम होने वाली है ना? और वही एग्जाम पेपर आपके पास आएंगे. Course and everything you will get the information. This time VO examination is there. One is VO. Second, that I will check and I will let you know. Fine. So all of you just start preparing for your test and everything. Last time हमने कहाँ तक complete किया था बेटा? High rate of taxes. High rate of taxes. Page number. Can you give me the page number, please? 79. 79. So that would be something that अरे क्लासरी एम क्या बोल वो बेटा कोई All the students अपने कैमरा ऑन रखिए और अपने आप को म्यूट कर लीजिए. We were on Indian economy before independence. हाँ बढ़िया है मैंने देखा
हाई रेट ऑफ एक्सरसाइज, हाई रेट ऑफ टैक्सेस पे थे हम लोग. Yes, ma'am. हाई रेट ऑफ टैक्सेस. फाइन. No, ma'am, this is completed. ओके, इट इज कंप्लीटेड. हाई रेट ऑफ टैक्सेस कंप्लीट हो गए थे. हाई रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम्स आई थिंक कंप्लीट हो गया था. इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. Ma'am, economic exploitation. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से बाकी है. ओके, Yes, No, ma'am. ma'am. No. तो कहाँ से Ma'am, बाकी? industry policy बाकी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी. Industrial policy से बाकी. Okay, so we will take from industrial policy, not an issue. So in industrial policy, it started, you can say, after the industrial revolution. जब industrial revolution start हुआ from the western country, it was from 1750 to 1830. 1750 to 1830 was the period of industrial revolution. ठीक है? In which the East India, what was the period of industrial revolution all about? The use of machineries was, you can say, was high. Initially, the industries were manpower oriented or human power oriented. All the work was done by humans. But as industrial, you can say, the new inventions took place, men was replaced by machinery, more use of machinery, and you can say electricity and was started in the industries. So from the year 1750 to 1830, that was a period of industrial revolution. You can study, you might have studied about this in your, you can say, social science. आपने social science में history में इसके बारे में पढ़ा होगा, if I am not wrong. ठीक है? Anyone would like to add from there? कुछ किसी कुछ याद है? What is industrial policy was all, industrial revolution क्या था? उसके बारे में कोई ऐड करना चाहेगा? Any student? आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. एक ग्रेड है ना, उसमें मिक्स कर देंगे. एक ग्रेड है, एक फिक्सेशन, वो नहीं, वो पता है मैं 3 जनवरी. Anyone? 3 जनवरी को. Okay, so today's homework would be write a note on industrial revolution. This is something which will be asked to you throughout your life. कि industrial revolution क्या हो? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको industrial revolution के बारे में पता ही होना चाहिए. ठीक है? So industrial revolution की बात करें तो men was, you can say, humans were replaced by hand production method was replaced by machineries, or machine was, you can say, given more initiation, and you can say machines, textile industries जो थी, या फिर textile industry was our cloth industry. Now Indian cloth industry was quite dominant throughout the world. दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया का कपड़ा जो था वो जाना जाता था. ठीक है? इंडिया का सिल्क, इंडिया का कपड़ा, it was quite having quite a value in the world. So what Britishers did is they took the raw material. At the end of the day, what matters is raw material. मतलब सपोज आप पनीर की सब्जी बना रहे हो और अगर पनीर खराब है, टेस्ट नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, जो कुक करता है दे नो, तो आप कितना भी अच्छा मसाला डालो पर आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी. पर अगर पनीर अच्छी क्वालिटी का है तो आपकी सब्जी थोड़ा भी मसाला डालोगे तो अच्छा बन जाएगा. तो सेम वे जो रॉ मटेरियल था ऑफ मेकिंग दोज गुड्स, they took that raw material from our country to their country. Now how they took it? they policy, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि आपको कंपलसरी ब्रिटेन के साथ में ही बिजनेस करना पड़ेगा. अगर आप ब्रिटेन के साथ में बिजनेस करते हो तो यू विल हैव टू पे लो टैक्स तो भरना ही है आपको, एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्टिंग टैक्स तो भरना ही है. उसके अलावा अगर आप नहीं भी बिजनेस करते हो तो दे वुड टेक 50% और मोर देन दैट ऑफ योर प्रोडक्शन. आपके 50% या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेके वो लोग कहाँ ले जाएंगे? दे विल टेक इट टू देयर ओन कंट्री. ठीक है? एंड that would be the you can say free of cost. They will take it free of cost from you, and the Britain की जो इंडस्ट्रीज है उनको वो रॉ मटेरियल, अच्छा रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. They had machineries. Instead of importing those machineries to India,
वो ये भी कर सकते थे कि वो जैसे रेलवेज इंडिया में लेके आए, है ना, ब्रिटिशर्स बॉट रेलवे टू इंडिया, इसी तरह से मशीन्स भी ले आते, बट वो नहीं लेके आए. व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू डेवलप देयर ओन नेशन. रेलवे को इसलिए लेके आए थे, दे वांटेड टू डेवलप देयर, यू कैन से, मैनेजमेंट, देयर एडमिनिस्ट्रेशन. वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे. दैट इज व्हाई दे बॉट रेलवेज. रेलवेज लाने का उनका रीजन वो था कि दे हैड टू, यू कैन से, मेक देमसेल्फ पावरफुल इन इंडिया. ठीक है, बट मशीन्स कर वो लोग इंडिया में इंपोर्ट नहीं करने देते थे. अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई अगर चाहता भी, जैसे टाटा या कोई भी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते भी कि हम बाहर से मशीन को इंपोर्ट करें, तो वो उसको इंपोर्ट करने के ऊपर इतने टैक्सेस लगा देते थे कि इट वुड बी ऑफ लॉस मेकिंग बिजनेस. यस और नो? फिर वो कंपनी के लिए क्या हो जाता था? लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाता था. सो गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ पॉलिसी दैट लॉस्ट द, जिसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स बिजनेस कर ही नहीं पाते थे. दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस. जो हमारे यहाँ पे अभी जो चल रहा है इंडिया में, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. दे वांटेड देयर इंडस्ट्रीज टू डेवलप. वो उनका मेन एम क्या था कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज डेवलप करें, नॉट इंडियन इंडस्ट्रीज वुड डेवलप. ठीक है, तो दैट वाज द बेसिक. नो अटेंशन वाज गिवन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंजीनियरिंग, हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज. इसको डेवलप करने के लिए कोई भी उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए. दे टुक ऑल द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. वो इंडिया से सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले गए और ब्रिटेन में से फिनिश गुड्स लाके उन्होंने इंडिया में बेच दिया. दे नेवर ट्राई टू, यू कैन से, improve our situation. ठीक है, so that was their industrial policy. Their industrial policy was loop sided, I can say. Why it was loop sided? Because they wanted to develop only their country. They were not interested. Loop sided मतलब उनका पलड़ा एक तरफ झुका हुआ था. They wanted to develop only, you can say, England. They were not at all interested to develop, you can say, Indian economy or Indian industries. So India was basically agro-based country. Industrial development उसका during the British reign was meager or very low. ठीक है. Next would be your economic exploitation. Exploitation की तो बात क्या करें, हमारे बॉलीवुड में हजारों मूवीज इसके ऊपर बनी हुई है. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. हाउ दे एक्सप्लॉयटेड? दे टुक वेरी हाई लेवल ऑफ टैक्सेस. दे टुक अवे, यू कैन से, देयर, उनकी प्रॉपर्टी उनसे ले लेते थे. यू कैन से, गरीब किसानों से उनकी प्रॉपर्टी ले लेते थे, उनका अनाज लूट लेते थे. दे हैड all the policies which the British government adopted was about, you can say, creating problem for the Indians and बोलते ना, फॉरेन अपनी कंट्री के पॉकेट्स भरना और हमारी कंट्री को लूटना. दैट वाज देयर मेन एम. नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसंस. हर्ड अबाउट ताजमहल के बारे में ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि ताजमहल बनाने के बाद में शाहजहां ने उसके सारे आर्टिस्ट के हाथ काट दिए थे. किसने से कहानी सुनी हुई है? हर्ड अबाउट दैट, है ना? Yes, ma'am. तो दैट वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसन की भाई वो मेरे लिए जो बना रहा है वो किसी के लिए ना बना पाए. अब ब्रिटिशर्स ने उससे भी बुरा किया. उन्होंने तो आर्टिसंस के हाथ काटे. उन्होंने यस कार्तिक, आई गॉट योर आंसर. आर्टिसंस ने को क्या किया, उन्होंने उनके उन्होंने जो बनाया हुआ है, जो भी उन्होंने चीजें बनाई हैं, उसके सामने दे बॉट मोर ड्यूरेबल गुड्स. मतलब सपोज अर्थन पॉट, आप में से कई लोगों के घर पे मिट्टी का घड़ा यूज हो रहा होगा, है ना? उसके सामने, अगर मिट्टी के घड़े के सामने अगर हम स्टील का घड़ा रखें तो उसकी लाइफ ज्यादा है. यस और नो? So what they did is they made a finished goods they bought finished goods from foreign countries and they sold it in our Indian market at a very low price, which were more durable, जो ज़्यादा ड्यूरेबल थे एज कम्पेयर टू इंडियन आर्टिसन. हम लोग मिट्टी के घड़े बनाते थे, वो लोग स्टील और आयरन के घड़े लेके आ गए और उसकी वजह से हम लोगों को वो, प्लस जो हमारे आर्टिस्ट थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारा क्या बोलते हैं टैक्स लगा दिया. लेकिन व्हेन यू आर सेलिंग इट टू आवर, यू कैन से, आपको पता है इंडियन आर्मी को कोई भी प्रोडक्ट है वो सस्ता मिलता है. कैंटीन का नाम सुना है? कोई आर्मी पर्सन है? Yes, ma'am. हाँ, व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट टेक टैक्सेस. मतलब सपोज हम लोग साबुन है तो साबुन के ऊपर हम लोग 1 रुपए का भी टैक्स उस पे नहीं लेंगे. ठीक है,
ऑन व्हाट वी से कि वैसे तो वैसे ही वो लोग क्या बोलते थे ब्रिटिशर्स कि हम ब्रिटिशर्स है, वी आर गवर्नमेंट, सो एज वी आर गवर्नमेंट वी यू कैन नॉट टेक टैक्सेस फ्रॉम अस, ठीक है। आप हमको कोई भी चीज है वो 15 to 40% सस्ते में दोगे, हम आपसे टैक्स लेंगे, लेकिन आप हमसे कोई भी प्राइस चीज को, सपोज अगर एक चीज 100 रुपए की है जो उस टाइम पे नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इफ द थिंग इज ऑफ 100 रुपीज, तो वो चीज वो हमसे लेंगे 60 रुपए में, 50 रुपए में, या फिर उससे भी सस्ता। गॉट इट? So Britishers they started to sell the cheap goods to our economy, और खुद जो थे उनके गुड्स को जो अच्छी क्वालिटी के थे, उनके गुड्स चीप थे मतलब चीप ही थे, they were not of good quality as such, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। और हमारी कंट्री के जो अच्छे गुड्स थे they took it to their own country, वो अपनी कंट्री में लेके गए और वहां पर हाई प्राइसेस पे बेचे, saying that these are antiques, these are authentic kind of things। तो बोलते ना दोनों हाथ में लड्डू किसके हाथ में? ब्रिटिशर्स के। हमारे गुड्स फॉरेन में जाके ज्यादा प्राइस पे बेचे, उनके गुड्स यहाँ पर चीप प्राइस पे बेचे, और हमारे आर्टिस्ट के पास से उन्होंने ज्यादा टैक्सेस लिए। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट पैटर्न। इन्वेस्टमेंट पैटर्न में क्या आएगा कि रेलवेज और रोडवेज जो थे दे वर क्रिएटेड ओनली एंड ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ they created railways and roadways only for the development of their own nation। उन्होंने अपने नेशन का अपना नेटवर्क पावरफुल बनाने के लिए they created this you can say railways। इन्वेस्टमेंट यू कैन से एजुकेशन पे, एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचा। वी हैव दिस पॉलिसी ऑफ वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट आवर वेदास, आवर संस्कृत एंड एवरीथिंग, बट Britishers they prevented getting us the education of you can say they prevented us to get our you can say Vedic education। उन्होंने अपना खुद का एजुकेशन को you can say encourage करने की कोशिश की। उन्होंने they made it compulsory कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, if you want to get jobs from the government, you need to get education of English as a subject, you need to understand English, you have to you can say get that only and only you will get the job। और वो उसको क्या कहा जाता था उस टाइम पे? बाबूज कहा जाता था, बाबूजी। heard about that बाबूजी in foreign language, मतलब they were considered as, जिसके पास इंग्लिश का नॉलेज है, they were considered as highly educated। English was just a language। English क्या है? It is just a language, it is a means of communication। but Britishers ने उसको बहुत ज़्यादा हाइप किया, और वो हाइप हमें आज तक देखने को मिलता है। टिल डेट वी हैव दैट हाइप। आज भी सब पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। मैं खुद भी अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो हाइप जो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे क्रिएट किया था कि इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज टू गेट टेक्निकल नॉलेज, इंग्लिश शुड बी द ओनली लैंग्वेज इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन यू कैन से, अगर आपको मेडिकल में जाना है, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप अपने मदर टंग में अगर आप एजुकेशन लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। You might have heard about यहाँ पर विद्यापीठ के बारे में सुना है आपने? अहमदाबाद में ही है विद्यापीठ। Yes, ma'am। गया है वहाँ पर? जो just go and visit विद्यापीठ। विद्यापीठ was the what we say, it was a college which was started by Gandhi ji so as to oppose our विद्यापीठ is a college। हाँ, it is a college। मैंने बोला विजिट करना अभी भी स्टार्ट तो हुआ था तब तो वॉर है ना, गांधी जी वॉर है सर, गांधी जी ये नहीं है, गांधी जी इज नो वॉर। Who said so? Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji. They are not Gandhi, whatever। Okay, so Gandhi ji he was the one who started this college, he was the dean of the college। आप जाके उसकी हिस्ट्री पढ़िए। he started, और उन्होंने ये कहा कि in this college it is not compulsory for you to study in English। आप इंग्लिश में ना भी पढ़ो तो भी आपको टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। इट वॉज वो कॉलेज आज भी प्रिवलेंट है, आज भी आप जाओ तो वो गांधीयन फिलोसॉफी पे चलती है। दे डोंट हैव दे हैव दिस कॉलेज वेयर यू कैन, अगर उसकी आप वहाँ से 10th भी करते हो, जैसे आप बोर्ड में 10th करते हो ना, वैसे वहाँ से भी आप 10th पास कर सकते हो, एंड इट इज वैलिड थ्रू आउट द वर्ल्ड। So that was our leaders, they tried to
oppose them, but most of the world, in most of the part of our country, they created that hype कि भाई इंग्लिश आएगी तो ही आप एजुकेटेड कहलाओगे. बिकॉज वाई? बिकॉज उनको हिंदी नहीं आती. दे डिड नॉट नो आवर लोकल लैंग्वेज. हिंदी भी नहीं. हमारे तो क्या बोलते हैं ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज. तो हमारी इतनी सारी लैंग्वेजेस थे. तो व्हाट दे वांटेड इज द इंडियन, इफ दे वुड लर्न इंग्लिश और यू कैन से दे लर्न देयर लैंग्वेज, तो इट विल बिकम इजी फॉर देम टू रूल. वो उनके लिए ट्रांसलेटर का काम करेंगे. दे विल वर्क एज अ ट्रांसलेटर. तो for that they created that kind of hype in our education system. उसके अलावा उन्होंने रेलवे को डेवलप किया. रेलवे और रोडवे को डेवलप करने का रीजन ये नहीं था कि उसको इंडिया को डेवलप करना था. अगर उनको इंडिया को डेवलप करना होता तो वो हमारे आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करते. बट दे डिड नॉट वांट टू डेवलप आवर कंट्री, दे वांटेड टू डेवलप देमसेल्व्स. So they started with the college, medical college, engineering college, etc. But the language would be English. ठीक है. They also started with the public work department where they initiated English as a, they did not promote और जो भी है हायर स्टडीज के लिए, सपोज उन्होंने कहाँ तक रखा कि भाई ग्रेजुएशन तक की डिग्री आप यहाँ से ले सकते हो. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ेगा. इफ यू नो अबाउट गांधी जी, तो गांधी जी ने भी अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा था? फॉरेन. बिकॉज दे डिड नॉट वांट कि भाई जो हमारे इंडियन लोग हैं वो ज्यादा पढ़ लिख ले, जो आगे जो टॉप लेवल पे हैं. देयर आर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल. तो जो मिडिल लेवल और बॉटम लेवल पे है, देयर यू वुड हैव इंडियंस टू वर्क, एंड ऑन टॉप लेवल देयर वुड ऑलवेज बी, यू कैन से, ब्रिटेन और ब्रिटिशर्स. बिकॉज उनका रीजन ये था आपके पास डिग्री नहीं है. अब सबके बस की बात नहीं है ना कि वो फॉरेन चला जाए और फॉरेन जाके पढ़ाई करके आ जाए. If you are in India, you will get you can say education till certain level only. आपको कुछ ही लेवल तक एजुकेशन मिलेगा. उसके आगे जाने के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ेगा. That was not every person's cup of tea. सबके बस की बात नहीं थी फॉरेन जाना. So that was their policy. Investment pattern was for their own development. Next is payment burden. इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक चार्ज था, होम चार्ज. जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि देयर इज वन पर्सन, आपने अपने घर पे किसी को रेंट पे रखा. कोई रखता है रेंट पे? किसी के घर पे कोई पर्सन रेंट पे रहता है? Yes. हाँ, चलो आपके किसी जैसे एक कैन आई गेट द नेम? रितु, आपके घर पे रहते हैं? ओके. Yes. आपके घर पे रेंट पे जो आंटी या अंकल जो भी रहते हैं, Now what happens is, वो आंटी आपके घर के रेंट पे रहते हैं तो अपने घर पे साफ सफाई रखते होंगे, है ना, अपना घर साफ करते होंगे, सब मैनेज करते होंगे. एट द एंड ऑफ द मंथ सपोज रितु जाके बोले कि भाई लाइए मुझे रेंट दीजिए बिकॉज यू आर लिविंग एट माई प्लेस. वो बोलेंगे किसका रेंट? किस खुशी में रेंट? मैं आपके घर पे रह रही हूँ, आपके घर की साफ सफाई कर रही हूँ. आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस, यू शुड पे मी बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस. तो व्हाट वुड रितु फील? मेरा घर, मेरे घर में रह रहे हो और आप मुझसे से रेंट मांग रहे हो. तो रितु, डू यू थिंक इट इज करेक्ट? आपको रेंट, वो जो आपका टेनेंट है, दैट पर्सन जो आपके यहाँ पे रेंट पे आया है, ही विल गिव यू रेंट और यू विल गिव हिम द रेंट? He will give. ही और शी विल गिव द रेंट ना. यहाँ पे उल्टा हो रहा था. ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे कि हम लोग ब्रिटेन से यहाँ पर आए हैं, ठीक है, वी केम फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया and we have to give salary to the British personnel, we have to maintain our army. हमको आर्मी और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, वॉर एक्सपेंसेस, पेंशन टू द रिटायर्ड ऑफिसर्स. हमारे यहाँ पे जो सोल्जर्स काम कर रहे हैं, फॉरेन सोल्जर्स, उनको हमको पेंशन देनी पड़ेगी. इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत खर्चा करना पड़ रहा है. सो यू हैव टू गिव चार्ज विच इज नोन एज होम चार्ज. मतलब हम आपका घर, मतलब इंडिया मेरा घर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंडियन, तो आपकी इंडिया को हम संभाल रहे हैं. दैट इज वाई यू विल हैव टू पे मी द टैक्सेस. मतलब आप मेरे घर में रह रहे हो, मेरे घर में खा रहे हो, मेरे घर में सब यू कैन से आपकी एक्टिविटीज कर रहे हो, फिर बोल रहे हो मैं आपके घर में रह रही हूँ तो आपके घर में रहने के मुझे पैसे दो. तो किसने बोला रहने के लिए? चले जाओ यहाँ से. दैट वॉज अवर कॉन्सेप्ट कि भाई हम, इफ यू आर इंडियन, if you believe that you have been, for example, if we talk about Mughals, when they came, so they did not take home charges from us कि भाई हम आपकी कंट्री में आए तो हम आपसे होम चार्जेस लेंगे. Nothing like that. But they also took the special टैक्स ले रहे हैं, वो अलग है, ठीक है. हमारा रॉ मटेरियल सस्ते में लेके जा रहा है, वो अलग है.
उसके ऊपर से दे आर टेकिंग होम चार्जेस. दैट वाज अ रियल व्हाट है ना जोक कि भाई दे आर टेकिंग होम चार्जेस. मेरे घर में रहने के लिए आप मुझसे पैसे मांग रहे हो. यू आर टेकिंग, यानी दे आर सेइंग दैट वी आर योर सर्वेंट्स. जैसे हमारे सर्वेंट्स होते हैं ना कि भाई हमारे घर पे रहते हैं, घर का काम काज करते हैं, फुल टाइम सर्वेंट हम लोग. तो वी आर योर सर्वेंट. सर्वेंट ऐसे होते हैं जो हमको एक्सप्लॉइट करे, मतलब काम सब हम कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत हम कर रहे हैं, एंड यू आर आई एम सपोज टू पे यू चार्जेस. ये कितना, it was not feasible, it was not correct, it was wrong, totally wrong. So till 1947 we paid home charges to their queen. Long live the queen, that was their logo at that time. अभी उनका जो भी है whatever. So they took away everything. वो हमारा कोहिनूर, हमारा you can say हमारे जितने भी valuable things है, they took it on the name of home charges. ठीक है कि भाई हम आपके घर पे आपका घर संभाल रहे हैं, तो यू हैव टू पे अस द होम चार्जेस फॉर मेंटेनिंग योर होम, योर नेशन. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड मोर देन दिस वी हैव फेस्ड एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द रेन ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी बिफोर, you can say at the time Indian economy before independence. This covers our Indian economy before independence. And now I can see on the screen that we have already completed 27 minutes. So it will be just 5 minutes more, then ये blink करने लग जाएगा. So we will start with the new topic, that is your, which one is Indian economy after independence. ये हम लोग start करेंगे in the next class. For today, I would like all of you to write a note. Write a note on Indian economy before independence. Indian economy before independence. Okay, and in that you can make use of the things which are given in the textbook, and you can make use of the, you can say your SS book. आपकी 9th-10th standard की 10th standard की SS की book होगी ना, उसमें दिया होगा. And also I would like you to write a note on, write a note on industrial revolution. Write a note on industrial revolution. Okay, so this is all about it for today. सबने नोट कर लिया होमवर्क? मैं रिमूव कर दूं? Yes, ma'am. Okay. So this is all about, अब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कितने अत्याचार किए उसके ऊपर तो पूरा ग्रंथ लिखो तो कम है. There is one video related to that. There is one, you can say, our you can say politician. He is very good at English. You remember the name of that politician? उसका इंग्लिश बहुत मस्त है. हाँ, शशि थरूर. Right. So Shashi Tharoor, he gave a very good speech. In the next lecture, I will share that speech with you. मैं आपसे शेयर करूँगी, मेरे लैपटॉप में ही है. तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं I will share that speech. It is awesome speech. It was something where he was asked. उसमें उनको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि don't you think that Britishers came to your country as we as a Britishers when we came to your country was more developed as it was before. So he gave a very good answer for that. It was कि भाई उनका क्वेश्चन ये था कि हम आपकी कंट्री में आए ब्रिटिशर्स, उसकी वजह से आपकी कंट्री डेवलप हुई, हम लोग ट्रेन लेके आए, हम लोग ये लेके आए, ब्ला 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 ब्ला. सो उसका उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया था. टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट लाइक पॉलिटिशियंस मच, बट आई लाइक द आंसर वेरी मच. तो वो जो आंसर है मेरे पास मेरे लैपटॉप में सेव्ड है. अभी वो 5 to 6 मिनट से उससे ज़्यादा का. So in the next lecture, just
मुझे मॉनिटर से ना एक बार मुझे मैसेज कर दिया, तो मैं उसको मेरी स्क्रीन पे रख लूंगी, तो आई विल शेयर इट विद यू। बहुत ही ब्यूटीफुल है वो, बहुत ही ऑसम वाला आंसर है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इट। अदर देन दैट आपका टेस्ट आने वाला है, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो जस्ट बी रेडी फॉर द टेस्ट, आपके टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। बी वेरी मच व्हाट वी से, ट्राई टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर राइटिंग। हो सके तो बिना देखे अच्छे से अपने लिखना। और अदर देन दैट ट्राई टू यू कैन से, अच्छा एक आपका टेस्ट लास्ट चैप्टर का टेस्ट भी लिखना है, बनाना है ना। मैंने कहा था आपका इससे पहले वाले चैप्टर का हम लोग टेस्ट लेंगे, तो उसमें आई वाज थिंकिंग कि वी विल टेक टेस्ट ऑफ वेयर आप लोगों ने 11th बी के बच्चों ने भी टेस्ट दिया है, ए के बच्चों में दे दिया है विदाउट ऑप्शन टेस्ट। तो इस बार मैं विदाउट ऑप्शन टेस्ट दूं इकोनॉमिक्स में, आप कर पाओगे? ट्राई करें, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि गेस वर्क हो जाता है। तो शुड आई मेक विदाउट ऑप्शन टेस्ट फॉर यू फॉर इकोनॉमिक्स? ट्राई कर सकते हैं? Yes. ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई वंस, है ना। सो दैट विल गिव यू बेटर यू कैन से एग्जाम। अब यही एक एग्जाम कर लेने का तरीका है हमारा, so it will give you better exposure. Okay, so with this we complete your lecture for today. We'll meet day after tomorrow. कल आपका statistics का lecture रहेगा, सैटरडे को स्टैट्स का लेक्चर था ना, आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, कल स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर रहेगा। तो कल हम लोग 11th ए और सी के बच्चे मिलेंगे। ए तो मेरा परमानेंट क्लास है, वी मीट एवरी डे, ये सब। बट जो बी और सी है, बोलिए टीचर एग्जाम की होगी? क्या बेटा? एग्जाम आई वाज अनेबल टू हियर। एग्जाम कितने मार्क्स की होगी? आई एम प्लानिंग टू टेक इट फॉर 20 मार्क्स। एक चैप्टर में से 20 मार्क्स से ज्यादा तो क्या पूछूंगी मैं। इट विल बी एमसीक्यू ना, आपको ऑप्शन आंसर देना है तो आई विल गिव यू 2 मार्क्स। जैसे अगर सपोज अगर आप चूज करते हो तो यू विल गेट 1 मार्क्स, बट इफ यू आर राइटिंग द आंसर आई विल गिव यू 2 मार्क्स। सो 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, तो 20 को यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, और कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी हम लोग एक मीटिंग ले लेंगे पहले, तो जिससे गलती ना हो। और अगर गलती होती भी है तो हम गलतियों से ही सीखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी आप लोगों से। ओके, सो शुड वी एंड द मीटिंग नाउ? एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? मैम चैप्टर कौन से होंगे? Chapter would be your last chapter, 7th chapter, 6th chapter we have completed na? Market. Yep, so we will have market. Market में से I will ask you 10 questions, 1 marker, and every question will have you 2 marks. Likewise. Okay? Okay for you, all of you? Okay. So with this note, we complete your meeting. Stay home, stay safe, and prepare for your test. I'll plan to have the test by the evening. आज शाम तक मैं प्रिपेयर हो जाता है तो मैं आपको सेंड करूंगी। लिंक विल बी ओपन फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक लिंक ओपन रहेगा, 1 घंटे के बाद में लिंक बंद हो जाएगा। एंड 1 टाइम यू कैन गिव आंसर, एक ही बार आप लोग आंसर दे सकते हो, सेकेंड टाइम इट विल नॉट अलाउ यू। ओके ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर नाउ। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अगेन प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। बाय ऑल। Bye teacher. बाय मैम। Bye beta. Bye Bye, beta. ma'am. Nice to see all of you. Bye bye beta. Bye bye.